ایک دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے اور انہیں فرمایا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ ایک صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سنو، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو: دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، ایک دھواں جو پوری زمین کو اپنی کنٹرول میں لے لے گا، ایک عجیب جانور کا آنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، سورج کا مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنا، مشرق، مغرب اور عرب میں زمین کا دنسنا، اور آخر میں ایک بہت ہی خطرناک آگ جو پوری دنیا کے انسانوں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب کو میدان محشر کی طرف دھکیل لے گا۔ ہم سب کو اچھے سے پتا ہے کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی، جو پوری دنیا کی آبادی کی 1% لوگ بھی نہیں ہے، انہوں نے فلسطین، عراق، سیریا اور دنیا بھر کی لاکھوں معصوم مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، اور آج بھی اسی طرح کنٹینیوسلی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے 2 بلین مسلمان بجائے اس کے کہ اپنے ان سب سے بڑی دشمنوں کے لیے ایک ہو جائے، وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ ورنہ دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہو جائے تو ایک یہودی کا مقابلہ 133 مسلمان کریں گے۔ لیکن پھر بھی مسلمان نمبرز میں زیادہ ہونے کے باوجود آج دنیا کی ہر چیز میں سب سے پیچھے ہے۔ اور انہی حالات کی پروفیسی آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے جیسے کچھ بھوکی لوگ بغیر کسی ڈر کے کانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور ڈر نکال دیں گے اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا، جس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب اگر حدیثوں پر غور کیا جائے تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ایگزیکٹلی یہی وہ آخری دور ہے، کیونکہ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں حدیثوں میں بیان ہوئی ہے وہ سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں، اور اب بس بہت جلد بڑی بڑی نشانیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اہل بیت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بالکل باقی بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر بالکل چینج کر لے گا، اور اسی چینج کے بعد ان میں ایک لیڈر، ایک بادشاہ بننے کی ساری کوالٹیز آ جائیں گے، جس کے بعد مکہ میں لوگ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ لیڈر بننے کے بعد وہ مسلمانوں کی ایک آرمی بنائے گا، اور ایسا ایسا مضبوط ہو کر وہ مسلمانوں کو یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کے ظلم سے بچائے گا، اور اپنے دشمنوں کو شکست دے کر وہ پوری دنیا کو امن اور چین سے بھر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کرے۔ یاد رکھنا، امام مہدی صرف ایک بادشاہ اور امام ہوں گے، اور ان کی طاقت تم ہوں گے، تو تیار رہنا۔ جیسے ہی امام مہدی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ بالکل وہی ٹائم ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو جائے گا، اور اس آدمی کے پاس ایسی پاورز ہوگی کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے عجیب کام کرے گا۔ اور یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے کام دیکھ کر بہت جلد لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اس کو اپنا خدا ماننے لگ جائیں گے، اور جو بھی شخص اس کے خدائی سے انکار کرے گا تو وہ آدمی اس کو سخت ترین سزا دے گا، اور یہ شخص ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو ظلم اور بے انصافی سے بھر دے گا۔
और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगी, बल्कि यहूदी तो उसको अपना मसाया भी मानते हैं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता दज्जाल इतना पावरफुल और खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनकी लीडर इमाम मेहदी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस झूठे मसाए दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला अपना सच्चा मसाया भेजेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने के बजाय अब उन्हें अल्लाह का बंदा मानेंगे। और फिर दुनिया से इसी फितने और फसाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा और यहूदियों के तौरात के मुताबिक आर्मेगेडन कहा जाता है। ये जंग शाम में शुरू होगी और इतनी खतरनाक जंग होगी कि इस जंग के हर 100 लोगों में से 99 लोग मरेंगे और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा। मतलब इतने लोग मरेंगे कि सारी दुनिया लाशों से भर जाएगी और अगर परिंदा उनके ऊपर से गुजरे तो उसे लाशों के अलावा कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी खतरनाक जंग के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस जंग के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया फिर से इंसाफ और अमन से भर जाएगी और फिर अमन से 7 साल हुकूमत करने के बाद हजरत इमाम मेहदी वफात हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की नई लीडर बन जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में हर जगह लोग खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन जमीन हिलना शुरू हो जाएगा और दूर दूर से आहिस्ता आहिस्ता चीखों की आवाजें आने लगेगी। थोड़ी देर बाद ये आवाजें और शोर एकदम तेज होना शुरू हो जाएगा और इतना तेज होगा कि लोग डर की वजह से कांपने लग जाएंगे और लोग बार बार उस तरफ देखेंगे जहां से आवाजें आ रही है। अचानक उन्हें कुछ ऐसे लोग भागते हुए दिखाई देंगे जिनके चेहरे वाइट और बाल छोटे छोटे होंगे और वो इतने ज्यादा लोग होंगे कि दूर से एक सैलाब की तरह दिखेंगे और उन लोगों का सिर्फ एक ही काम होगा, तबाही ही तबाही। दुनिया की हर चीज को तबाह करेंगे, खाने की सारी चीजों को खा जाएंगे और समंदरों का पानी भी सारा का सारा पी जाएंगे। उनकी ये तबाही देखकर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अपनी फरियाद करेंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सारे मुसलमानों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला इसी मखलूक याजूज और माजूज को खत्म कर देंगे। याजूज और माजूज के खत्म होने के बाद एक दफा फिर से लोग दुनिया में खुशी खुशी रहेंगे। सारे लोग मुसलमान होंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन इसी तरह 7 साल गुजरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद लोग फिर से इस्लाम को छोड़ देंगे और गुनाह के काम शुरू करेंगे और वही जमीन जो इससे कुछ ही वक्त पहले अमन और खुशियों से भरा हुआ था एक दफा फिर से जुल्म के अंधेरों में चला जाएगा। और जब ये जुल्म और बेइंसाफी बढ़ जाएगी तो अचानक एक दिन सुबह के टाइम लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि सूरज पहले जहां से निकलता था अब बिल्कुल उसके अपोजिट साइड से निकला। मतलब सूरज मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से निकलेगा और ये कयामत की सबसे खतरनाक निशानियों में से होगी। असल में अल्लाह ताला का एक कानून है कि जब भी अल्लाह ताला किसी कौम और लोगों को अपनी सच्ची निशानियां भेजते हैं तो उसके साथ क्लियरली ये ऑर्डर भी होता है कि अगर इन निशानियों के बावजूद भी लोगों ने ईमान नहीं लाया तो फिर अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब भेजेंगे। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, फिरौन और उसकी कौम। और ऐसे ही जब आखिरी जमाने में लोग ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जैसी सच्ची निशानियां देखेंगे लेकिन फिर भी वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा जैसे पहले कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये इंसानों पर इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह ताला उस दिन तौबा के दरवाजे बंद फरमाएंगे और इसके बाद जो भी शख्स ईमान लाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब उस दिन के बाद जो पहले से मुसलमान होगा वो एंड तक मुसलमान रहेगा और जो काफिर होगा वो अपने इस कुफर की हालत में मरेगा। लेकिन लोगों को आपस में ये पता नहीं चलेगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। फिर इसी डिफरेंस को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में एक और बड़ी निशानी को भेजेगा, दाब्बतुल अर्ज़, द बीस्ट ऑफ द अर्थ।
No one escapes me. ये एक अजीब किस्म का जानवर होगा जो सफा की पहाड़ी से निकलेगा, और इसी जानवर के जिस्म दूसरे जानवरों के मिक्सचर से बना हुआ होगा। मतलब उसका सर और चेहरा बैल की तरह होगा, आंखें खिंजीर की तरह, गर्दन ऊंट की तरह, उसकी कान हाथी की तरह और सीना शेर की तरह होगा। उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और उस जानवर की सबसे अजीब बात ये होगी कि वो आम इंसानों के साथ उनकी लैंग्वेज में बातें करेगा। और इसी जानवर का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये जानवर पूरी दुनिया में घूमेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से मुसलमानों पर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिरों पर मार्क करेगा। मार्क करने के बाद मुसलमान का चेहरा तो चमक जाएगा, लेकिन काफिरों का चेहरा काला और सियाह हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग उससे इस डर की वजह से भागेंगे कि वो उन पर मार्क ना लगाए, लेकिन पूरी दुनिया में इस जानवर से कोई भी शख्स नहीं बचेगा। मतलब दुनिया में जो लोग भी रह रहे होंगे उनको दुनिया में ये पता चल जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। पूरी दुनिया के इंसानों को मार्क करने के बाद उस जानवर की मिशन खत्म हो जाएगी और फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाएगा। अब इस जानवर के गायब होने के कुछ ही वक्त बाद अल्लाह ताला एक तेज और ठंडी हवा भेजेगा। ये हवा एक रिवायत में आता है कि रात के वक्त आएगी जब मुसलमान अपने बिस्तरों पर लेटे हुए होंगे, और ये हवा आराम से उन सारे मुसलमानों की जान लेगी जिनके दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान हो। मतलब इस हवा के आने के बाद सारे मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे और सिर्फ काफिर जमीन पर रहेंगे। और फिर एंड में अल्लाह ताला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग भेजेगा। ये आग यमन से निकलेगी और दुनिया में मौजूद सारे लोगों को मैदान महशर की तरफ धकेल देगी। और सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक दुनिया में जितने भी लोग मरे हैं उन सारों को दोबारा जिंदा करके अल्लाह ताला उन्हें महशर में जमा करेगा और फिर